find values of x. Done, sir. Very good, very good. Yojit, doing very good, beta. Drew, very good. Adinath, very good, beta. (31) x is equals to 1.
Should I start? Yes, sir. Devans, very good beta. See, start with the first one, right? The first one, I have to start with like modular. I have to find, or just I have to solve this one, right? So look, this is obviously this is for Olympiad. So we have certain method for this, right? So first is called the hit and trial. This thing, if you are, you know the concept and all, so that will be very easier for you, right? Like it's given 31x is equals to 37, right? Mod 37, right? 31x congruence to 1 mod 37. If I'll divide this, then I'll get minus 6x congruence to 1 mod 37, right? Or we know this 6x congruence to minus 1 mod 37. I can multiply this by 6. So I'm getting 36x congruence to minus 6 mod 37. Now look, now it's a turning point. It's 36x, right? This 36x will be converted into minus x congruence to minus 6 mod 37, or x congruence to 6 mod 37, right? This is the easier way to get the answer for mod 37. Otherwise 37 se divisible is not that simple, right? But if you are able to convert the numbers in this form, so always easy, but it's not always possible to get the numbers, right? उसके लिए क्या करना होगा, आगे उसकी बात करते हैं. Now go to the second one. 7x is equal to 24. 7x congruence to 1 modulus 24, right? How to solve this, right? So first go with the nearest number, but you can go, right? Or this, we know that this is 24. 24 into 2 will be 48, right? And 48 nearest to this multiple of 7. So 24 into 1 is 24 only. This is 48. 48 is an interesting number, right? Because I know, okay, if I'll multiply this by 7, I'll go to this 49. And 49 is working good, right? So this multiply with 7, 49x congruence to 7 mod 24. And this will be x congruence to 7 mod 24, right? So x congruence to 7, right? Okay, right? Go for the last one, right? 6x congruence to 1 mod 6x congruence to 1 mod 22, right? So what would be the values of x? So this will be some values. Obviously x and y are integer. Be careful, right? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता जितना हम लोग क्वेश्चन को अपने तरीके से बना लेते हैं. Exactly what is the meaning of this? So 6x, the meaning of this is 6x is equal to 22k plus 1, right? The meaning of this is 6x is equals to 22k plus 1, right? Now look, बड़ा interesting सा number आ गया, जो कि obvious सी बात है. k is integer, so obviously 22k will be the even integers, and the plus 1 says that this will be the odd one, right? This is odd, but 6x, since x is integer, so 6x will be even integers, so even is equal to odd is not possible. And अगर थ्योरम याद हो तो थ्योरम ये था 6 and 22 का जो हमारे पास HCF आ रहा है, GCD आ रहा है, that is 2, right? अगर ये GCD के इक्वल नहीं है, GCD का मल्टीपल नहीं है, तो 100% there must not be any solution. लास्ट क्लास में अगर याद हो तो हम लोगों ने ये काम किया था, right? So this is 22k plus 1. Is it okay? So first का आंसर, hope everyone is getting this 6.
Second का answer everyone is getting that 7, and third का answer is obviously no solution. How many of you are getting HCF is the GCD, greatest common factor? Don't think that HCF के बारे में, अमन केवल ये सोचो ना बेटा कि आपको क्या मतलब है 6x is equals to 22 integer plus 1. So this side will be always odd and this side will be always even. तो even is equal to odd तो कभी possible ही नहीं है. तो मैं दोनों को इक्वेट करना या इक्वेट के लिए नंबर ही खोजना मेरे लिए मतलब यू नो ना बेवकूफ़ी हो जाएगी. Why to go for that numbers? Very good, very good, very good, very good everyone. Very good, very good. ये जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना आगे जाके ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को हो जाएंगे, लेकिन जब सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तब, राइट? सो गो फॉर द फोर्थ वन. 37x congruence to 25 mod 39. Go for this. Find all values of x that will satisfy 37x congruence to 25 mod 39. Very good. गुरांश जो नंबर आ गया ना 39 से you can divide ना. Think when divide by 39 then what number you are getting, right? The remainder or the number must be between 0 to 39 or 0 to 38 or 1 to 39 only na. Very good, Kevin. Tanis, same again. The number is very big, right? You can divide the number with 39, then it will go with the multiplication of 39. Devras, very good. Tantre is very good. Look, 37 and GCD of both the numbers 37 and 39 is 1 only. So obviously 25, right? To multiply of 1. So we will get the solution for this, right? So 39 and 37. So this is minus 2x congruence to obviously 2 is not there, so we can multiply or divided by 2 both the sides. So 7 mod 39, the easiest way to get the number. Hope everyone is getting this. Yes. Right?
few of the numbers. Next, you are trying this. 7x congruence to 1 mod 13. 6. 13x congruence to 1 mod 17. 7. 41x congruence to 5 mod 51. That's it. Only 3. सर ये लास्ट में नंबर क्या है सर? मॉड के बाद क्या 51 है या 71 है? सर for the 7, what is the mod value? Sir 51. 51. It's 51. Thanks. Thanks sir. Very good, very good. For fifth one, you can multiply with 2, so you are getting 14x congruence to 2 mod 13, right? Minus x congruence to 2, oh sorry, plus x congruence to 2, to x is equal to 2 mod 13, right? Directly you are getting this. For second one, 13. Sir, can't see. I'm not showing. For the second one, it's a multiple of 13 and you have to get this with the multiplication of 17. कुछ ऐसा जो तरीके से वर्क कर जाए, right? So 17 and 13. We know that 13 into 4 is 51. 51x congruence to 4 mod 17 and 52x congruence to 4 mod 17 and 17 threes are 51. 50. So there is 4 mod 17. Yes, please. किसी का वॉइस कुछ आ रहा था, प्लीज? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर. Right. Now this is minus 10x congruence to 5 mod 51. Right.
or we can multiply with 5 minus 50x congruence to 25 mod 51, right? And this we can write x congruence to 25 mod 51. Sir, can you show the 3 holes? Which one, beta? This? Comfortable? सर Yes. आप एक में थोड़ा ऊपर ले सकते हो? Which one? This one, beta? Fourth one? यस सर, सर इसमें -7 आना चाहिए ना सर? कहाँ पर बेटा? दोनों तरफ माइनस था ना, कैंसिल कर दिया ना माइनस दोनों तरफ से। हाँ सर नीचे का पार्ट दिखा सर देना सर। इसमें आपने -14 कंसीडर किया तो Please. लास्ट वाले में क्यों नहीं किया? Please raise your hand if you want to ask anything. Please raise your hand. Yes, Hitans. Ask please. सर सेवेंथ वन का लास्ट सेकंड स्टेप आई कांट अभी ये फोर्थ वन पहले दिखा रहा हूँ किसी को जिसका क्वेश्चन है, उसको देख लेने दो बेटा। आई गेस डन फोर्थ वन, राइट। फिफ्थ सिक्स सेवन, यस बेटा सेवंथ वन, यस आस्क प्लीज। सर लास्ट सेकंड स्टेप -50x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 mod 50. Okay, I thought it was 57. Sir, got it. यस, और कोई बोल रहा था कुछ बीच में, कोई पूछना चाह रहा था शायद। सुजल, यू वांट टू आस्क? नो? हाँ सर। आप सर इन द फोर्थ क्वेश्चन में, अच्छा थोड़ा प्यार से बोलो ना, कैसे बोल रहा है? हाँ सर। सर फोर्थ क्वेश्चन में 25 आपने डिवाइड 39 किया तो आपने -14 लिया, तो 7 सम में क्यों नहीं लिया सर? हैं? 7 सब में? सर 25 था तो mod 39 तो -14 कंसीडर किया ना सर। वो नंबर 51 से ऊपर नहीं इसमें जा रहा है, तो वो नंबर 51 से ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिया। वो नंबर 5 है जो नीचे ही उससे गया हुआ है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया वहां पे। ठीक है सर। ना, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी हम लोगों ने इसलिए की थी कि हम लोग CRT, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं CRT, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइना का नाम लेना थोड़ा सा गड़बड़ है, बट फिर भी अभी लेना पड़ेगा ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बट मैंने पहले भी कहा था, जितने भी फॉर्मूला हैं एंड ये जितने भी नंबर्स वगैरह बने हुए हैं, ये बहुत पहले कहीं ना कहीं जगह पर और कई जगह पर रहे हैं। हाँ, कई जगह पर जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे अधिक इसकी डेवलपमेंट रही है। एंड कम से कम नहीं तो नहीं 2500 और 3000 ईयर्स पहले के ये सब नंबर्स कहीं ना कहीं वर्किंग पे रहे हैं, राइट? अंश। ओके, सो जो बट जब भी वो रिटन फॉर्म में जहां से आया, वो रिटन फॉर्म में ही हम लोगों ने इसकी वर्किंग शुरू की है। दैट्स द रीजन, जहां जहां जो भी रहा वैसे ही हम लोग के वर्किंग हमने स्टार्ट किया है, राइट? सो ऑब्वियसली Sir, what is CRT? Can you repeat? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये PDC क्या है? So मेरा initial से sir. Could you explain what is the PDC? P is for Piyush and C is for Chalare. P for Piyush, D for My father's name. and C for? Chalare. तो पीयूष चल्लारे लिख देना उसको प्लीज। हाँ, Okay, okay. ये
I guess this is your first class, beta. So second sir, second. लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ना ये, लास्ट क्लास में जल्दी छोड़ दिया था क्या? नहीं सर, आपने बोला था ना कि प्रीवियस लेक्चर्स देखना चालू करो, इसलिए आई लेफ्ट द क्लास सर। हाँ सर, मैंने ये पढ़ाया था बेटा। मैंने और उसने साथ में सर कॉन्ग्रुएंस में किया सर था, कॉन्ग्रुएंस तो मेथड नहीं आपने समझा था ना बोला था प्रीवियस लेक्चर देख ले। सर, कॉन्ग्रुएंस मेथड नहीं समझा था, सो यू टोल्ड मी कि लीव द क्लास और एल्स आई विल नॉट अंडरस्टैंड। सो आई स्टार्टेड विद कॉन्ग्रुएंस मेथड, वाचिंग कॉन्ग्रुएंस मेथड एंड आई हैड टू लीव दैट क्लास। आप लोगों का लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास था ना, इसलिए वो प्रॉब्लम थी। मैंने इसलिए Yes, sir. वीडियोस sir. भी भेज यस दिया सर, था। लास्ट क्लास मेरा, हाँ सर, दिस इज माय सेकंड क्लास। इट्स ओके, मैं समझ गया हूँ ना। हम लोग हाँ। स्टडी के लिए जा रहे हैं ना। ये मैं एक बार फिर से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके कंसेप्ट के साथ में कराऊंगा कि यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होने हैं और क्वेश्चन क्या होते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यस सर, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस। यस सर। Now, see, the Chinese remainder theorem is something like this. If you are like first, what I have to do, इसे थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखता हूँ जिस फॉर्म में we know this, right? If I'll multiply this by 4, right? So multiply this by 4, so this is 4x into 2. That will be 8x. Sir, I can't see. Sir, I can't see what you're writing on the screen. एक छोटा सा प्यूस ना रिक्वेस्ट ना, आप लोगों को जब भी कुछ भी बोलना रहेगा बेटा ना, प्लीज रेज योर हैंड ना। Okay sir, sorry sir. Yeah. So what I was saying कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन एक फ्रेम किया, the question is something like for CRT, I was saying कि Chinese remainder theorem, 2x congruence to 5 mod 7 and 3x congruence to 4 mod 8, right? So first I have to get कि exactly what is the question given. So I'm saying if I'll multiply the first equation by 4, so this will be 8x congruence to 20 mod 7, or obviously I can write this as x congruence to 6 mod 7. This is the first equation, right? And similarly, the second one, 3x congruence to 4. If I'll multiply this by 3, 9x congruence to 12 mod 8, or this 9x is congruence to x mod 8. So this is again x congruence to 4 mod 8, right? क्लास 10th में भी शायद आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हों, राइट? क्या क्वेश्चन था उसे समझना। द क्वेश्चन वाज कि इफ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर by 7, it will leave the remainder 6. When the same number x you are dividing by 8, this leaves the remainder 4. So exactly what is the remainder you'll get when you are dividing this number by 56. Once again I am coming into this. When you are dividing a number by 7, it will leave the remainder 6. When the same number you are dividing by 8 leaves the remainder 4, then what will be the remainder when you are dividing this by 7 into 8, right? This is the simplest form of the number, right? ये one of the simplest form में हमने नंबर को लिया हुआ है, उस पर हम लोग ये वर्किंग करना चाहते हैं, right? So how to find this? कैसे इस नंबर को फाइंड करूं, क्या वर्किंग रहेगी उसे देखता हूं। एग्जैक्टली मेरे पास क्या है जो मुझे निकालना है, लाइक x जो वैल्यूज मेरे पास आनी है, राइट? वो x मैंने एज्यूम किया जो नंबर है, क्या क्या होगा थोड़ा सा कहानी समझना पड़ेगा बेटा, इसलिए पेशेंस के साथ ना। a1 n1 x1 प्लस a2 n2 x2, ये a1 n1 x1 और a2 x2 n2 क्या क्या है उसे समझते हैं। एक्चुअल में ये a1 जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, राइट, इसे रीराइट करूं मैं तो x कॉन्ग्रुएंस टू a1 मॉड कोई स्मॉल n1 है एंड x कॉन्ग्रुएंस टू a2 मॉड n2, राइट? ये दो गिवन है, तो a1
एंड A2, तो मुझे पता चल गया क्या है, A1 मेरा 6 है, A2 मेरा 4, राइट। तो हम लोगों ने चार्ट बनाना है एक, जिसमें हम लोग ये पूरी जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम लिख पाए, राइट। जिसमें पहला मेरे पास है कि A1 A2 क्या है मेरे पास, राइट। फिर मेरा N1 N2 क्या है मेरे पास, ये दो नंबर। तो A1 was 6, A2 was 4, राइट। सो कैपिटल N1 एंड स्मॉल n1, यहाँ पर दो बातें हो रही है, राइट। तो व्हाट इज दिस n, राइट। यहाँ पर जो कैपिटल N जो गिवन है, होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट। Yes. तो कैपिटल N का मतलब क्या है उसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मेरे पास एक मैंने N लिया, ये N का मतलब है 7 × 8। जो दो नंबर यहाँ पर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 होते तो 3 का मल्टीप्लिकेशन, 10 नंबर होते तो 10 का मल्टीप्लिकेशन, और 100 होता तो 100 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो N1 यहाँ पर है, जब मैंने इस पूरे N को जो फर्स्ट नंबर 7 गिवन है उससे डिवाइड, फर्स्ट नंबर जो 7 गिवन है उससे डिवाइड किया। सो N1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर N1 की वैल्यू 7 थी और ये 8 थी, लेकिन कैपिटल N1 और N2 मेरे पास जो है वो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा, या मैं ये कहूँ कैपिटल N/N1 हो जाएगा, कैपिटल N/N2 हो जाएगा। केवल इतना तक ही आप समझो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको बढ़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं केवल इतने तक यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट मैंने क्या क्या किया है मैं फिर ब्रीफ करूंगा, पहले नोट डाउन करो फिर मैं ब्रीफ करूंगा। हिटांस, वेरी गुड बेटा। A1 है जो हमने क्वेश्चन गिवन था उस पर हमने लिया हुआ है, वो A1 है। A2 मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाला, A1 A2 जो हमारे पास था, x = गिवन था। कैपिटल N का मतलब है जितने भी नंबर्स गिवन है सबका मल्टीप्लिकेशन। N1 का मतलब है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n1, जिससे आपने डिवाइड करना है। कैपिटल N2 का मतलब है कैपिटल N टोटल नंबर अपॉन N2, डिवाइड जो करना है। Piyush, is it okay? Yes sir, understood. वेरी गुड बेटा। और कोई एक जन थे जिनका आज फर्स्ट था आज डे, तो जो भी होंगे। Sir, यस हाँ सर। sir, is there any derivation for this thing which you wrote x is equal to a1 n1, what is that, n1, the big n1 small n1 लॉजिक plus? समझाऊंगा बेटा, लास्ट क्लास में भी हाँ. समझाया था, इसमें भी समझाऊंगा, कोई नहीं। Okay sir, yes sir, yes sir. राइट। सो अब मेरे को अब x1 x2 क्या है नाउ, व्हाट इज दिस x1 x2? x1 x2 जो है वो मेरे को निकालना है। कब निकालना है? जब मैंने कहा कि n1 जो मेरे पास आया है, लाइक इन दिस क्वेश्चन n1 8x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod n1 से, राइट, मींस 8x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्या हुआ ये। थोड़ा बफर हो रहा आपका नेट। बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, जहां पर भी हो रहा है, मैंने पहले भी बोला राइट इट डाउन, मैं उसको रिपीट कर दूंगा 2-3 बार ना। आर यू एबल टू सी? नो सर। नहीं, No, sir. बस मैंने अभी तक No लिखा। sir. Are you able to see now? See. Yes sir. ना? Yes sir. See, what is this? ध्यान से, मैं बीच में आ गया था। What is this x1? We have to find x1. So n1 into x1, what you have to do? n1 into x1 congruence to 1 mod small n1. उसमें जो x1 आएगा that you have to write there, right? So in this case, I can say if I'll divide by 7, x1 is 1 mod 7. So x1 is coming as 1. What is x2? So again, you have to find x2. So n2 into x2, n2 into x2, n2 into x2 congruence to 1 mod
n2 is 8 only, congruence to 1 mod 8. If I'll divide by 8, this minus x2 congruence to 1 mod 8, or x2 congruence to minus 1 mod 8, और x2 congruence to 7 mod 8. मतलब x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, राइट? सो x1 और x2 की वैल्यू भी मुझे लिखनी है यहाँ पर, तो मैं ये दो वैल्यूज भी लिख लेता हूँ, x1 x2 will be 1 and I guess 7, 1 and 7. ये पूरी चार्ट आपको बनानी पड़ेगी। क्या क्या? एक a1 a2, राइट, दूसरा स्मॉल n1 n2 गिवन है, उससे कैपिटल n1 n2 आपने निकाला, उसके थ्रू आपने x1 और x2 निकाला। ये पूरा चार्ट हमेशा आपको बनाना पड़ेगा इस CRT के लिए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए, राइट? यस सर। सो अब ये पूरा चार्ट बनने के बाद ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज, राइट? अब केवल और केवल मुझे वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने हैं। तो x is equals to, what is a1? 6. What is capital N1? 8. 8. What is x1? 1. 1. Plus. What is a2? 4. 4. What is n2? 7. What is x2? 7. Right? So 8 into 6, 48. अगेन हैंग हो गया। 8 into 6, 48 plus 7 into 7 into 4, right? 49 into 4. 196. आप ऐड करते जाओ, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, आप ऐड करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, you'll get this ना। 244 आ रहा होगा, ये पूरा x यहाँ तक सभी वैल्यूज आपके पास है। देखो कैलकुलेट करके क्या वो 244 आ रहा है? सर Yes, raise your hand. Someone want to ask anything? Please raise your hand. Yes, Bhumi. सर ये जो नीचे x1 x2 का डेरिवेशन दिखा दोगे इधर? हाँ, वो दिखाऊं बोल रहे हो? हाँ सर। Just a minute बेटा। Can you see this, the complete thing? Now 240 is coming, right? X is coming as 244. So when you are dividing by obviously 56, what you are getting? So 5 4 ja 200 चला गया, 24 चला गया, 20, right? We are getting 20 when dividing by this number. Okay. Okay. Yes, Adi. सर वापस सर नहीं दिख रहा है, आप 224 का देखिए। 56 वाला मॉड निकाला ना लास्ट में? आखिरी में 56 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना टोटल को? हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा। अरे मैं तेरे को आदि बोल देता हूँ, इट्स ओके ना आदिनाथ? हाँ सर, चलता है। चलता। ओके डन। सर एक हाँ बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि ये क्यों किया, एग्जैक्टली ये समझने वाली बात है कि एग्जैक्टली बाय दिस, राइट? आपने जो लिया यहाँ पर x इज इक्वल टू a1 n1 x1, क्योंकि ये दो नंबर के लिए ये दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, जब 100 नंबर्स होंगे उस समय के लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट? उस समय कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, अभी देखते हैं वो भी। जब यूनिट प्लेस में नंबर क्या होगा, किसी नंबर के लिए निकालना होता, 100 प्लेस पर नंबर क्या होगा, 1000 प्लेस पर नंबर क्या होगा, ये निकालने के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम
बहुत इफेक्टिवली यूज होता है, और भी काफी जगह होता है रिपीटेशन वाले में भी, लेकिन इन जगहों पर भी काफी अच्छे से यूज होता है। ओके, डन एवरीवन, मैं बढ़ सकता हूँ आगे? Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू। Yes, sir. अब यहाँ पर सो फाइनल आंसर इज 20 ना? आपके पास x इज इक्वल टू आया था x हाँ सर। to 244 mod 56, 7 into 8, राइट? 56 से डिवाइड किया तो 224 आएगा 4 टाइम्स, तो बचा आपके पास 20 mod 56। सो ये आपका आंसर गया। ओके ओके अनमोल, राइट? तो x इज इक्वल टू, अगर ध्यान से सोचो तो वी हैव रिटन x इज इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने क्या क्या लिखा, a1 n1 x1, a1 n1 x1 प्लस a2 n2 x2, राइट? ये दो नंबर्स हमने लिखे थे, राइट? अगर मैं x को बोल रहा हूँ कि मॉड n1 मैंने रखा, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली बात है कि n1 तो सेकंड वाले में कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये तो डिवाइड हो गया पूरा का पूरा कॉन्ग्रेंस के हिसाब से। फर्स्ट वाले में अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, n2 बच जाएगा, तो x कॉन्ग्रेंस टू a1 n2 a1 n2 x1 बच जाएगा, राइट? लेकिन x1 में मैंने अपनी तरफ से ऐसा सेलेक्ट किया था कि n2 इंटू x1, मॉड n1 के लिए हमने सेलेक्ट किया था कि उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर उसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है तो x कॉन्ग्रेंस टू a1 मॉड n1 होगा, मतलब क्वेश्चन जो मेरा था वो वापस आ रहा है। सिमिलरली मैं n2 के साथ भी यही ऑपरेशन कर रहा हूँ तो x इज इक्वल टू a2 मॉड n2 आ रहा होगा। मतलब जो मैंने ये लिखा हुआ है पोर्शन, ये मेरे लिए ऑलवेज ट्रू हो जाएगा फॉर 2 नंबर, 3 नंबर, n नंबर या 100 नंबर्स हो तब के लिए भी। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. नहीं समझा। यस सर। Yes, sir. आया हो वो रेज योर हैंड प्लीज, या राइट डाउन इन द चैट प्लीज। यस अंश, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा? सर वो जो आपने बाद में किया ना x कॉन्ग्रुएंस टू a1 इन ब्रैकेट अच्छा, n जोर टू से x1 बोलो वही जय नहीं माता दी, समझा। जोर से बोलो जय माता दी। सर वो जो आपने लिखा है ना x कॉन्ग्रुएंस टू a1 इन ब्रैकेट n टू x1 वही नहीं समझा। ये शुरू में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है a1 x1 n1, नहीं सर वो बाद में थर्ड लाइन है ना। हाँ ये जो लिखा, कैपिटल N1 क्या था? कैपिटल n1 क्या ये वाले लिखा? सब में। हाँ, सब मतलब फॉर्मूला में कैपिटल N1 था, n अपॉन N1 था। हाँ सर। कैपिटल N1 जो था, कैपिटल n का मतलब हो गया N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 बाई N1 था, मतलब कैपिटल N1 मेरा N2 था यहाँ पे। मैं उसको डिवाइड किया हूँ तो वही N2 लिख रहा हूँ, और ये x1 को x1 और ये दोनों जैसे था उसको वैसे ही लिखा। ओके सर। ठीक है, और कोई? लेकिन अगर यही 3 नंबर होते, मान लो ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, x कॉन्ग्रेंस टू n a1 मॉड n1, x कॉन्ग्रेंस टू a2 मॉड n2, x कॉन्ग्रेंस टू a3 मॉड n3, राइट? ये गिवन होता है, राइट? वर्किंग क्या रहेगी उसे समझना सभी लोग ना, कोई लिखना मत, आराम से बैठ जाओ, केवल देखो क्या क्या हो रहा है ना, फॉर्मूला में जल्दी से भागो मत, राइट? सबसे पहला काम तो कैपिटल N का मतलब है N1 इंटू N2 इंटू N3, राइट? N1 N2 N3, ये 3 वैल्यूज निकालनी है मुझे, ये 3 भी निकाल के देखते हैं क्या क्या आएगा। N1 का मतलब क्या होगा, कैपिटल N बाई स्मॉल n1, राइट? दिस इज N1।
मीन्स ये आ गया n2 n3, राइट। ये n2 का मतलब हो गया कैपिटल N बाई n2, इसका मतलब हो गया n1 n3। n3 का मतलब हो गया कैपिटल N बाई n3, इसका मतलब हो गया n1 n2, राइट। a1 a2 a3 जो गिवन है वही रहेगा, राइट। अब मुझे चाहिए x1 x2 x3, वो क्या होगा, कैसे आ रहा है वो देखो, x1 x2 x3, x1 x2 x3 कैसे आएगा, x1 आएगा n2 n3 इंटू x1 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड n1 से, राइट। x2 आएगा n1 n3 इंटू x2 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड n2 से, एंड x3 आएगा n1 n2 इंटू x3 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड n3 से। ये तीन रिजल्ट हमारे पास n1 n2 n3 जो हैं वो यहाँ से आ रहे होंगे, राइट। तो अब मेरे पास ये कंप्लीट सब का सब जो भी मुझे चाहिए वो तैयार हो, राइट। n1 n2 n3 and x1 x2 x3, is it okay everyone? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये बोल सकता हूँ कि ये completely you are knowing this कि exactly what we are doing. Piyush, is it okay बेटा? Piyush, okay everyone? Yes, sir. राइट। तो मेरे पास a1 a2 a3 गिवन है, x इक्वल टू लिखने के बाद कैपिटल N मेरे पास गिवन है, n1 n2 कैपिटल n1 n2 n3 मुझे निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल n1 n2 n3 से, एंड उसके साथ में मुझे x1 x2 x3 निकालने हैं जो हमने मॉडुलस से काम करके निकाला हुआ है। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. राइट। Yes. नाउ तो अब बात ये रह गई कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप ही लोग मुझे हेल्प कर पाओगे, राइट। कि कोई क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करें और उसमें अगर मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ तो इस बार मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो मैं बड़े क्वेश्चन पर ही जाने की कोशिश करूँगा, राइट। x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 5, x कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 7, x congruence to 3 mod 9, x congruence to 4 mod 11, right. Find all integer x which leaves the remainder 1 2 3 4 when divided by 5 7 9 11 respectively, right. क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें, जिसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल इंटीजर x, find all integer x, find all integers x which leave a remainder of 1 2 3 4, 1 2 3 4 when divided by 5 7 9 11, 5 7 9 11 पूरे चार्ट के साथ, जैसे मैंने चार्ट बनाया था x1 x2 x3 x4 क्या क्या गिवन है, a1 a2 वगैरह वगैरह, राइट। वेरी गुड अमन, यस एग्जैक्टली। सर आपका लिखा हुआ नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? यस भौमिक, सर आपका ये लिखा हुआ नहीं आया, आपने जो बोला अभी मुझे फाइंड द रिमाइंडर। बेटा नहीं लिखा मैंने, वो लिखा नहीं, यही लिखा हुआ है बेटा। मैं ओके सर। इसीलिए तो बोला उसे ना कि आप लिख पाओ।
Very good. Returns very good. Yes. Returns very good. Aman very good. Calculation थोड़ा सा ठीक सा रखना बस. Take your time everyone. Done everyone. थोड़ा fast please. Sir, just a minute. The last 2 minutes.
Sir, done. सर आपका माइक अनम्यूट है, म्यूटेड। सर आपका माइक एक्चुअल ये पूरी कहानी यही की है नहीं। A1 A2 A3 ऑलरेडी गिवन था मेरे पास, N1 N2 N3 कैपिटल N1 N2 N3 मैंने निकाल ही लिया। X1 X2 X3 X4 निकालना जो होगा वही इनवर्स में पूरी की पूरी कहानी चलेगी। स्निग्धा नंबर को देखो शायद डिवाइड होके छोटे आ रहे हों इससे, तो वो लाना पड़ेगा मुझे 11 इंटू 5 इंटू लाइक। तो अब X1 X2 X3 X4 ये 4 नंबर अगर मेरे पास आ गए तो कहानी अपने आप बन गई। तो ये निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या रखा था कि N1 जो गिवन है मतलब 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू X1 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 5, राइट। एंड mod 5 निकालने के लिए अच्छा उपाय क्या कर सकता हूँ मैं, इसे सीधा लिख सकता हूँ, इसे 2, इसे लिख सकता हूँ -1, इसे लिख सकता हूँ 1 इंटू X1 1 mod 5। इतनी बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उतना तो ऑब्वियस सी बात है। 2x1 इज इक्वल टू 1 mod 5, राइट। मैंने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, -4x1 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 5, और यहाँ से आ गया x1 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 5, राइट। तो x1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, सर आपने मल्टीप्लाई किया ना 2 से, सर x1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। हाँ x1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, वैसे ही x1 निकाल लिया, वैसे ही x2 x3 x4 निकालता जाऊंगा और हर एक वैल्यू ऐसा ही निकलता जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी से मेरे को हेल्प करो, चैट में लिखो x2 x3 x4 की वैल्यू क्या क्या आ रही है। x3 x4 x2 x3 x4 की वैल्यूज। सर मुझे x3 नहीं मिला। 3 4 8 तो
तो मुझे 3 4 3 मिल रहा है। 3 4 3 सर, वो सर माइनस है टेक्स्ट को शायद। आखिरी वाला मैं निकाल दूंगा अभी बेटा, जो भी आपको लगेगा वो निकाल दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। राइट, A1 A2 A3 भी निकल गया, N1 N2 N3 भी निकल गया, X1 X2 X3 X4 भी निकल गया मेरे पास। यस स्निग्धा। सर ये सर उसको पूरा दिखा सकते हो आप? मम्मी बेटा प्लीज रेज योर हैंड। हाँ यस स्निग्धा। मुझे x3 की वैल्यू 5 आ रही है। X3 की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं हम लोग। X3 मतलब 5 into 7 into 11, 5 into 7 into 11, right? 5 into 7 into 11, X3 congruence to 1 mod 9, right? 9 किया तो 10, 5 को 5 ही रहने देता हूँ, इसे 2 लिख देता हूँ, इसे भी 2 लिख देता हूँ। X3 congruence to 1 mod 9, right? तो 5 टू जा 10, 5 और ये 10 को ले लिया तो 1 आ गया, 10 माइनस 2 X3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 9, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 X3 इज इक्वल टू 4 मॉड 9, राइट। और इसकी वैल्यू तो अपने आप में वही रहेगी, तो क्या 4 हमने लिखा था, हाँ ठीक है तो लिखा हुआ है 4, दिस इज ओके। सर एक बार आप x4 की वैल्यू बता सकते हो? अभी फाइंड कर लेते हैं x4 बेटा। x4 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 into 7 into 9, x4 congruence to 1 mod 11, right? 5 into 7 into 9 mod 11, 48x3 माइनस, right? ये 5 रहने देता हूँ, इसे -4 लिख देता हूँ, इसे -2 x4 congruence to 1 mod 11 लिख दिया, right? 5 into -2 को -10 लिख देता हूँ, -10 इज सेम एज 11 का 1 ही हो जाएगा, -4 x4 1 mod 11, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -12 x4 congruence to 4 mod 11, राइट। दिस इज -x4, सर 3 से मल्टीप्लाई किया। हाँ 3 था, सॉरी, mod 11 और x4 इज 8, 18 का था ना, सही तो लिखा है 8, वेरी गुड। धीरे धीरे सब निकलवा ही दिए भाई, राइट। यस भूमि। सर ये जरा फुल करके दिखा देना। बेटा फुल करने के पहले समझ तो क्या कर रहा हूँ, ये फुल कर करके क्या करेगा, नोट करने से नहीं बनेगा बात, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है ना। ये फुल तो करके तू नोट कर ही लेगा, मैं वीडियो भी दे ही दूंगा तेरे को, बट समझ तो क्या हो रहा है यहाँ पे। A1 A2 A3 A4 आ गया, N1 N2 N3 N4 आ गया, X1 X2 X3 X4 आ गया। नोट इट डाउन, आराम से नोट करो। You have to write down the values and you have to find the values, right? ये फाइंड हो गया तो आगे बढ़ना हमेशा आसान होगा। 2 4 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के बाद में you'll be able to now। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं आइलर के एंड फर्मा के फॉर्मूलाज आपको पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ते ही आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जो बहुत बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बमिक नोट कर लिया बेटा? x4 का वैल्यू बताओ सर 1 मिनट। मेन यही है आपके पास, जो A1 A2 A3 A4 N1 N2 N3 N4 X1 X2 X3 X4।
ये जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करेगा ना अमन, ये सब ना n वेरिएबल पर खेलेगा इन चीजों को। हाँ, एंड इट्स ब्यूटीफुल। मतलब और ये सब ना मेंटली वर्क होते हैं, ये सब के लिए इतना लिखने उखने की जरूरत होती नहीं है। शुरुआत का वो रहता है, इसके लिए मैं भी थोड़ा ये कर रहा हूँ। इट्स ओके। सो नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, राइट। तो a1 हर एक की वैल्यूज को मैं रखते जाता हूँ एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो प्लीज हेल्प मी आउट नाउ। So you have to find x is equal to a1 n1 x1 plus a2 n2 x2 plus a3 n3 x3 plus a4 n4 x4। जल्दी से इसे निकाल के बताएं क्या आंसर आ रहा है। सबके अलग अलग, ऐसा ना करो। जो भी नंबर, अगर नंबर बहुत बड़ा आ गया 5 7 9 11 के मल्टीपल से, तो यू हैव टू डिवाइड। जेबल, सानिया, आदित्य, ये क्या कर रही है सानिया? उतना बड़ा सा नंबर लिख के छोड़ दी। अरे उसे डिवाइड तो करेगी। जो रिमाइंडर बच रहा होगा उससे छोटे नंबर आ रहे होंगे, दैट यू हैव टू राइट ना। हाँ, 19056 जो नंबर आया उसे 1731 मतलब उसे डिवाइड करो जो भी नंबर है 3465 से। यस, हाँ, ये इंटेलिजेंट वाला काम कर दिया तुमने सानिया। 3456 लिख दिया मॉड। सर आप कर लो। 1731 आना चाहिए ना, या 1734? सर 1731 आ रहा है। आ रहा है ना। कैलकुलेशन चेक करो। सर ये A1 N1 X1 का कैलकुलेशन सर से रॉन्ग हो रहा है। क्यों? A1 X1 नहीं wrong सर, हो वो रहा है? कैलकुलेटर यूज करके एक बार ही चेक करता हूँ सर, वो ऐसे नोटबुक में करा तो उसको गलत आ रहा है सर। वैल्यूज वही लिया सर, एक बार ही कैलकुलेटर में। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। ये सब को छोटा करना भी बताऊंगा बेटा, अभी शुरुआत है ना, अभी थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर लो बस। हर चीज का समय आएगा ना, एक साथ में बहुत कुछ बताने पर ना वो कंसेप्ट क्लियर की जगह अनक्लियर हो जाते हैं। तो अभी शुरुआत का समय है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में हम लोग करें ना। नाउ you all are doing this, right? No gadbad please. X congruence to 2 mod 5, x congruence to 0 mod 7, x congruence to 4 mod 11. Do it fast. वन 1731 स्ट्रिक्टा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके सर।
चार्ट जरूर बना लेना, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल बात हो जाती है चार्ट बनाते ही। सर 301 आ रहा आंसर। अभी करेंगे बेटा। वेरी गुड प्रत्युष। स्निग्धा कैलकुलेशन चेक। Adinath, very good. Sujal, check your calculation. Suyas, very good. Aman, check your calculation. Siddhi, number must be between 0 to 385. Aditya, very good. आदित्य, जो नंबर आया उसे बेटा डिवाइड तो करोगे, ये नंबर
रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए ना नंबर इटसेल्फ से, 11 इंटू 7 इंटू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना। कितना आएगा 385। मैंने चेक किया सर। अभी चेक कर लेते हैं हूँ मैं भी। एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है सर ऐसे में। हाँ सर एक्स्ट्रा ऐसे नहीं निकालना। सर 1302 भी सेटिस्फाई कर रहा है सर, लेकिन कंडीशन ये सब 1302 ही आ रहा है। नहीं वो सिंपलीफाई हो रहा है, बट लीस्ट हाँ, नंबर अलग आएगा। 7 है। यार क्लास में सर के सामने बातचीत हो रहा है, बताओ। ये आदित्य का ही काम होगा। आदित्य तेरा ही नाम था ना यहाँ, और ये तेरा ही काम था ना। फिर मेरे को 1456 आ रहा है। वाह, ताली बजाओ सब लोग। सर तो करेक्ट है क्या सब? 385 से कम सर होना पहले चाहिए। ही पूछा, उसके बाद मैं 300 बना रहा सर, उसको सॉल्व करते हैं ना। x1 x2 x3 के लिए अगर मेरे को हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो एवरी टाइम आई हैव टू फाइंड 3 6 और 3 put this coming x1 x2 x3 3 6 and 3 सर मुझे 366 सर आ रहा है। हाँ सर x36 आ रहा है। 6 आ रहा है। 6 मेरे को भी वही हाँ सर, यस सर। यही अज्यूम करते हैं, राइट। x is equal to 2 into 7 into 11 into 3 plus 0 plus 4 into 5 into 7 into 6, right? सर डाउट 1302 हाँ सर, 130। 1302। Yes, Aman. सर आपने x2 की वैल्यू क्यों निकाली सर? x2 की वैल्यू क्यों निकाली? नहीं निकालो, मैं तो पूरा का पूरा क्या है वो लिख रहा। कितना आ गया टोटल? 02 सर। 1302 से mod 385 कर दिया, क्या आ गया? 147। 147 mod 385 या लिख सकता हूँ 385 के प्लस 47। इस फॉर्म का जितना भी नंबर होगा सबका सब आपका आंसर होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ये देख लो भौमिक, नोट इट डाउन बेटा। यस अंश, अंश वांट टू आस्क? अच्छा सर मुझे x3 3 आ रहा है, और फिर बाद में जब मैं निकाल लेता हूँ सब कुछ तो फिर x कोई बात आता नहीं है। बेटा, x3 पहले निकाल लेते हैं ना। x3 अगर 6 आ रहा होगा तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? ये देख लेते हैं। ओके सर। 3 का मतलब हो गया 5 into 7 5 into 7 into 3 1 mod 11, राइट? क्या किया आपने बताओ? व्हाट यू आर डूइंग? मैंने 5 और 7 का सबसे पहले मॉड निकाला, तो फिर -1 इंटू -4 इंटू x3। कोई नहीं, ऐसे भी ले लो। 35 हो गया, 35 हो गया, 11 से डिवाइड करूंगा तो 33 x3 is equal to 1 mod 11 आ गया, राइट? 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x3 मतलब 12 होगा, जो 1 ही होता है। ये तो ठीक तो है, 6 ही तो आ रहा है बेटा, ठीक है? शायद मैंने दूसरे मेथड से किया इसके लिए। नहीं बेटा, कोई दूसरा मेथड से ना। मैथमेटिक्स है ना, बहुत प्यारा चीज है, यूनिकनेस होता है आंसर में हमेशा। दिवांश सर 147 नहीं आता है ना?
147 ही आया ये तो। हाँ सर। 385 इंटू 4 किया, फिर -1302 किया। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। 385 इंटू 3 करना सिर्फ हाँ 147 आएगा। जो तू बोल रहे हो नेगेटिव में आ रहा है तेरा। हाँ, जो तू बोल रहे हो नेगेटिव ये है। मैंने म्यूट किया आप लोगों को ना, मैंने म्यूट किया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मिल गया। हाँ हाँ मिल ही जाएगा, उसमें क्या, चालू बोलेंगे तब नहीं मिलेगा, नहीं तो मिल ही जाएगा। फाइंड नंबर n such that when divided by 4 remainder is 2, when divided by 5 remainder is 1, when divided by 7 remainder is 1. That's it. सर लास्ट रिमाइंडर क्या है? 1. ओके। सर इसका मतलब यही हुआ ना, x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 4 वैसे ही हुआ ना? हाँ बेटा, वेरी गुड। सर लास्ट वाले When लास्ट वाले में divided by 7 leaves the remainder 1.
Very good. Very good. Wow. अमन एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपना। मैंने आपको एक और सॉल्यूशन मिला, गलती से लिख दिया। नमन, आदिनाथ, देवांश, तंत्रीश, आदित्य, प्रत्युष, जिबल, भाग्यश्री, अमन, उदय, ब्रज। आदित्य 2 बार लिख दिया, ये बदमाश है 1 नंबर का। सिद्धि, अमन, केविन, स्निग्धा, फिर लिख दिया यार। ये आदित्य सिंह ना सुधरेगा नहीं, बहुत मार खाएगा। मैं लॉकडाउन खत्म हुआ तो बचेगा नहीं, बता। सर प्राइवेट पे लिखा सर, मेरे को थोड़ी ना पता, वो ढंग से लिखना था सर बस। अभी 106 को टाइप करके ढंग से लिखने का क्या मतलब है? नहीं सर, वो मॉड ब्रैकेट के साथ सर, वो ठीक लगता है सर ऐसे, इसलिए। 106। ध्रुव चेक करो बेटा एक बार, ध्रुव चेक करो एक बार। वेरी गुड यार। सुजल वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन इज गेटिंग वेरी गुड। होप इस बार मेरे को शायद क्वेश्चन ना करना पड़े, चल जाए कहानी इस पे। यस अंश। सर मुझे बस x3 नहीं मिल रहा है, बाकी सब ठीक खोजो है। ना, आजू बाजू होगा देखो, खोजो। चलो दोनों मिलके करते हैं हम लोग। हाँ, पहले A1, A2, A3 इसकी वैल्यूज क्या क्या आ गई ये बताना। ये तो गिवन है 2 1 1, राइट। इसे हटा लूं। N1, N2, N3, कैपिटल N1, N2, N3, राइट। इसकी वैल्यूज को निकाल लेता हूं। ये भी कुछ गिवन है शायद, तो ये क्या क्या गिवन है? सर स्मॉल 1 and 2 है ना, गिवन। 5 into 7, 4 into 7 and 4 into 5 ना, 4 5 7 ही था ना, ठीक। हाँ सर। थर्ड मेरे पास क्या निकालना होता था? x1, x2, x3। इसमें आप प्लीज हेल्प करो, कहाँ पर दिक्कत जा रही है बोलो तो मैं उसी हिसाब से आपको हेल्प करूं। x1, x2, x3 क्या आ रहा है? 3 to 6। यस सर, 3 to 6। मुझे 2 to 6 आ रहा है। हाँ सर। राइट। इसमें किस में दिक्कत जा रहा है बेटा आपको? तो 20x3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7, इसमें क्या दिक्कत जा रहा है? ये आ गया -x3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। -x3 का मतलब हो गया x3 कॉन्ग्रुएंस टू -1 mod 7। -1 का मतलब हो गया 6। सही तो है सर x1 में डाउट है।
x1 में 5 इंटू 35 x1 congruence to 1 mod 4. So minus x1 congruence to 1 mod 4. हाँ सर माइनस क्या दिक्कत, क्यों दिक्कत, ये सब क्यों? अरे हो गया ये तो प्लस माइनस नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ओके हाँ सर राइट। अब तो x निकालने का है तो आई गेस एवरीवन इज गेटिंग 106, तो कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन यू आर डूइंग दिस राइट। 106 इज द आंसर राइट। इसी हाँ, का सर। एक और टाइप का क्वेश्चन था ना, वो मैं दे रहा हूँ। होपफुली सब लोग एकदम सही करो, अच्छा लगेगा, हैप्पी टीचर्स डे हो जाएगा। हाँ? हाँ सर 5x congruence to 2 mod 8, 3x congruence to 2 mod 9, and x congruence to 0 mod 11 right। find the number। थोड़े से और आप आगे बढ़ जाओगे ना तो देखना ये सब कोई चाइनीज वाइनीज का जरूरत नहीं पड़ता है, सब इंडियन दिमाग काम कर जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। सर पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर है? 106 बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को फर्मा पढ़ा रहा हूँ, फर्मा और आइलर पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में। यस सर। सर अगर नो सॉल्यूशन आया तो क्या करने का? उसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन। नहीं मतलब वो इक्वेशन में कैसे डालेंगे? मतलब बेटा वो बाद में होगा ना तो A1 कैपिटल N। N1 वो सब कैसे ढूंढेंगे, ऐसा पूछ रहे हो? x1 x2 x3 वगैरह। कहाँ नो सॉल्यूशन, एक किसी नंबर के लिए नो सॉल्यूशन है तो पूरे के लिए नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा गलत क्वेश्चन हो गया था, सोचना थोड़ा क्या पूछा। नो सॉल्यूशन है सर सेकंड 3x3। हाँ सर सेकंड वाले। ठीक है ना? हाँ सर सॉल्व ही नहीं होगा। सर 0 आ रहा है। हाँ x इक्वल टू थर्ड जैसे। सर 3x की जगह कोई और नंबर दे दो, सॉल्व करते हैं बेटा फिर से। वो तो मेरे जो जरूरत था वही जरूरत था ना, मैं ये दिखा सकूं कि ये ख्याल रहे आपको, जो आपने पढ़ा हुआ है वो हमेशा काम देगा ना। तो दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा आपको इसके लिए, ठीक सर है? इसको भी सॉल्व तो कर ही सकते सर फॉरवर्ड ना। हो गया ना सर, हैप्पी टीचर्स डे, सबको आ हाँ गया। सर सबको आ गया। हाँ सर सबको आ गया। ओके यस सर। Yes, sir. राइट डाउन नेक्स्ट। राइट क्या बात है सर। सर सब में 1 और लास्ट में 0। 7 से डिविजिबल है बट और सबसे डिविजिबल नहीं। ओके सर। थोड़ा आराम से दिमाग लगाते हुए। सर 10 मिनट।
वो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। अब एक्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया आपको, राइट? तो थोड़ा दिमाग लगाते हुए ना, वो फॉर्मूला था बट उसके एप्लीकेशन अब आपको दिमाग लगाने हैं। टेक योर टाइम। ओके सर। सर x2 ढूंढते वक्त भी मतलब 1680 x2 आएगा। सर x1 का वैल्यू नहीं आ रहा। नॉट बैड उदय, थोड़ा सा और। भाग्यश्री, गड़बड़ हो रहा है, चेक करो चेक करो। The number you have dialed. Done.
वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ध्यान दो, अगर मुझे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगाना है या कैसे वर्किंग होगी, ध्यान देना, क्योंकि इसमें ना अधिकतर डिविजिबल वाले केसेस हैं ना। सर एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट। हेलो, यस सर। हो गया सर बस एक मिनट। सर मैंने भेजा आंसर सही है क्या? सही है बेटा, सही है, वेरी गुड। डन सर। हाँ सर। सर आपका माइक। सर आप म्यूटेड हैं। x1 x2 x3 x4 यही निकालने हैं, राइट। लास्ट यही है जो आपको निकालना होगा, राइट। तो वहां से निकालने के बाद यू कैन पुट द वैल्यूज, बट ध्यान देना मैंने केवल यहाँ पर जो प्ले किया वो 4 5 6 7 से किया, 2 3 को मैंने नहीं लिया, राइट। क्योंकि 6 अगर 2 3 100 का तो 6 तो भी चलेगा। या मैं यहाँ पर, और इससे मजेदार क्या रहता, मैं ये केस को भी नहीं लेता, मैं यहाँ पर लेता x is 1 mod 3 को। हाँ सर। राइट। हाँ सर। मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 केस इज इक्विवेलेंट टू पूरा का पूरा केस, राइट। मैं 3 के साथ भी लेता ये तक, ये पूरा का पूरा केस वही रहता जो हमारे पास है। तो ये समझने वाली बात होगी कि मेरे को इतना बड़ा नंबर दिया है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर दे रहा है डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं प्राइम फैक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो केवल 3 पकड़ूं, राइट, 4 पकड़ूं, 5 एंड 7, तो ये 2 एंड 6 अपने आप में इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, मेरे पास आ चुका है, राइट। तो ये अगर मेरे को चाइनीज रिमाइंडर इसमें लगाना है, सीआरटी लगाना है, तो एक काम तो मेरा ये हो सकता है, राइट, कि मैं पूरे नंबर को ना लूं, केवल 3 4 5 7 के साथ में वर्किंग करूं, एक ये रहेगा। लेकिन
अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, मैं इतना अगर मैं जज कर चुका हूं कि 3, 4, 5 एंड 7 के साथ में है, तो ये तीनों से अगर ध्यान से देखो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल, लाइक 1, 1, 1 दे रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बच रहा है, राइट। ये तीनों से रिमाइंडर 1 बच रहा है और इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर वर्किंग क्या हो सकती है कि मैं पहले से ही ये मानूं कि मेरा जो नंबर n है वो 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड अगर हो रहा है, तो तीनों का 3, 4, 5 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये आएगा 60। तो मैं बोलूं कि नंबर जो है वो 60n+1 का फॉर्म है, तो चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। राइट, अगर 60n+1 का फॉर्म है तो हमेशा वैलिड है। अब मेरे को n जो है वो इंटीजर है, जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से जाएगा ये, राइट। अगर मैं 1 रखता हूं तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 रखता हूं, राइट, तब भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 रखता हूं 181, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 4 रखता हूं 240, तो 7 नहीं जा रहा है, 5 रखता हूं तो जा रहा है आई गेस ना, 301। तो मेरा नंबर जो है वो आ गया 301, राइट। ये बहुत कम परेशानी से आपके पास नंबर आ गया, वो है नंबर आपके पास। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम 100% है जिसको आपको यूज करने हैं। देवरस, तो आस्क एनीथिंग। सर CRT यूज करने के लिए सब मॉड वैल्यू को प्राइम होने चाहिए? बेटा उसमें भी आप ले सकते हो, मतलब उससे कोई ये रहेगा नहीं, बट को प्राइम लेना आपके लिए आसान पड़ेगा नंबर को लेने के लिए। ओके सर। क्योंकि वो जो नंबर डिविजिबल है, मान लो ना 2 से और 4 से डिविजिबल आप निकाल रहे हो, तो 8 से डिविजिबल थोड़ी आएगा नंबर। अगर कोई नंबर 2 से और 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं दो चीजों को मर्ज कर रहा हूँ तो ये तो 100% है कि दोनों के दोनों हमारे को प्राइम वाले हैं, उसी की बात चल रही है। ओके सर। अगर 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, मतलब दिस इज एज गुड एज 4 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है, राइट। 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा 2 एंड 3 से डिविजिबल है एज गुड एज 2 एंड 6 से डिविजिबल है, राइट। सर मतलब 5, 10 करेक्ट ना सर को? नहीं समझा मैं बेटा। सर अभी ये 301 है, तो उसमें जो हम लोग को अभी 3 into 4 into 5 into 7 जो वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर जाएगी तो हो जाएगा ना सर ये? हाँ, तो अब और जितने भी ऐड करते हैं, हाँ, प्लस 60 एंड जो भी है नंबर्स को, यस ठीक है। हाँ अमन सर इसमें हम बस x इज इक्वल टू 1 mod 5 के लिए सॉल्व करेंगे ना सर? हाँ हाँ सर मैंने किया, उसके लिए मेरा आपका अलग आ रहा है। हाँ, ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हो? 3, 4, 5, 7 के लिए ना बेटा। सर लेकिन बाकी सब में तो x1 0 आ जाएगा ना सर, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल जा रहा है सर। कंप्लीटली डिविजिबल तो चाहिए ना मेरे को सर, तो a1 a2 a3 मतलब सॉरी n1 n2 n3 तो सर कम्प्लीटली डिविजिबल जा रहा है सर 2, 3, 4 से। हाँ, और सर 6 और 7 भी कम्प्लीटली डिविजिबल जा रहा है mod 6 और mod 7 से। अच्छा सीआरटी लगाने का बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ तो उसमें डायरेक्ट 301 नहीं आएगा सर मेरे को 2016 mod 5040 आ रहा है। 5040 क्यों ले जा रहे हो? मतलब 16 into 7 कर रहे हो ना सर? एक्चुअली मैंने पूरे के लिए किया सर, एक्चुअली मैंने आपने बाद में सॉल्व किया ना सर, मैंने पूरे के लिए किया। 420 होगा ना बेटा। अभी मैंने एक एग्जांपल बड़ा प्यारा सा दिया था, मैंने पूछा था, तो मैंने अभी बड़ा अच्छा सा बात बोला था कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, एक बार आप निकाल रहे हो, दूसरी बार निकाल रहे हो वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या बोलोगे? 8 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है? 4 से। 8 से नहीं होगा ना। ओके तो आपके पास 3, 4, 5 तो 420 से डिविजिबल वाले हैं। जो भी नंबर आपके पास आया ना अमन, उसको 420 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। एक मिनट सर 2 और 6 को क्यों कंसीडर नहीं किया है? किसी ने कुछ बोला शायद, आवाज नहीं आ रही ढंग से, एक बार सर यहाँ पे 2 और 6 को कंसीडर क्यों नहीं किया है? 2 और 6 को
3 और 4 हो गया ना बेटा, तो उसमें 2 और 6 दोनों आ गए ना। अच्छा ओके सर। 2 वाला 4 के अंदर आ गया, 6 वाला 3 और 4 के अंदर आ गया। ओके सर। यस सिक्ता। सर हम इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो मैंने ऊपर में लिखा भी था, फिर से लिख देता हूँ। केवल मैं नंबर ले रहा हूँ 3, 4, 5, 7 के लिए, राइट। इसमें A1, A2, A3, A4 की वैल्यू 1, 1, 1, 0 होगा, राइट। फर्स्ट जो आपको निकालना होता है वो ये रहा, राइट। सेकंड आपको निकालना होता है N1, N2, N3, N4। ये हुआ 4 × 5 × 7, 3 × 5 × 7, 3 × 4 × 7, 3 × 4 × 5। स्निग्धा, इज इट ओके? ओके सर, हो जाएगा सर। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग निकालूंगा x1, x2, x3, x4 एंड उसको बस देता जाऊंगा मैं। आप ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, सर आपने 3, 4, 5, 7 ही क्यों लिया, 2 कहाँ चला गया, 6 कहाँ चला गया? 2, 3, 5, 7 में ले सकते हैं। जल्दी कोई कुछ पूछ गया सर। 2, 3, 5, 7 भी ले सकते हैं ना। मतलब नहीं जरूरत है ना बेटा, 2 का तो 4 में कंसिडरेशन में आ ही गया और 6 का 3 और 4 के साथ में आ गया। वैसे मिक्स ना, तो मैं इसका वर्क आप लोगों को उसमें डाल दूंगा और एक